Hi guys, I'm Sean, this is Anelsa, Gus is upstairs, and this is Internet Rabbit Hole Daily. And I am back with another reaction. As you guys might have seen, I've been following a bit of the controversy here with Diljit Dosanjh and this actress, Kangaroo Renat, and their Twitter spat that they sort of engaged in over the last couple of days here. Now, as I understand it, it started when this actress posted a pretty inflammatory tweet about this old woman who had been involved in the farmers' protest, sort of suggesting maybe that she was an actress for hire, that she'd been seen in other protests, and that this was sort of some kind of conspiracy. I don't know what she was thinking. As I understand it, she did delete the tweet, but not before, of course, Diljit came out to stand up for the farmers and to stand up for that woman. And so I've been sort of picking at the edges here. As you guys know, I checked out a couple of maybe NDTV videos on it, and I saw an article, but I'm ready to hear what this gentleman has to say. So a few of you guys have suggested that, well, that I check him out. And so this is Akash Banerjee. And thank goodness we've got some great subtitles here. So I'm going to check out what he has to say about this, what he's calling the Twitter showdown of the year. So let's jump right into this, guys. होती है, never wrestle with a pig. You both get dirty and the pig likes it. मतलब oh, did you guys hear that? I'm just one more time because I really like that saying. I'm gonna have to use that one. You know what? He says there's a saying in English. I'm not sure I've ever heard this saying, but now I have. अंग्रेजी में एक कहावत होती है, never wrestle with a pig. You both get dirty and the pig likes it. मतलब सुअर से अगर कुश्ती लड़ोगे तो खुद भी गंदे होगे और सुअर को आएगा मजा। अक्सर हम एनोनिमस ट्रोल्स और अब्यूजर्स के साथ यही स्ट्रैटेजी अपनाते हैं, जवाब ही नहीं देते हैं। इससे बड़ा इंसल्ट और क्या हो सकता है, और सुअर भी तिलबिला जाता है इग्नोर होके। Yeah, that's the thing. Trolls don't like to be ignored, right? Because that's where they get their energy from, is from getting a reaction. लेकिन कुछ ऐसे ट्रोल्स भी होते हैं जो इस खामोशी का नाजायज फायदा उठाते हैं और हर दिन हर जगह गंदगी फैलाते हैं। प्रॉब्लम तब और बड़ी हो जाती है जब इन ट्रोल्स के फॉलोअर्स काफी ज्यादा होते हैं। Uh-oh, I kind of had a feeling that that's who he was referring to as the troll here. So this would be the actress. और इनको सरकार का फुल सपोर्ट और सरकार की फुल सिक्योरिटी भी मिलती है। तब एक और कहावत काम आती है, sometimes you have to get down and wrestle with the pig to the pig its place and then have a nice hot bath. अरे सिंपली समझाएं तो जरूरत पड़ने पर सुअर से भी भिड़ना पड़ता है उसकी जगह उसको दिखाने के लिए। ऐसा ही कुछ करना पड़ा पंजाबी सुपरस्टार एंड सिंगर दिलजीत दोसांझ को जब कंगना रनावत ने अपना फोकस बॉलीवुड करण जौहर, सुशांत सिंह राजपूत से हटाकर फार्मर एजुटेशन पे लगा दी। अरे भाई, सरकार इतनी सिक्योरिटी देती है उसे, उसका भी तो कुछ। Okay, so he's kind of saying that the government's pretty okay with what she's saying, or at least that's the sense I'm getting. In fact, they've got protection for her, and I think we saw in that last picture, maybe she was sort of within that group of bodyguards there. फर्ज बनता है सरकार को सिक्योर करने का, सरकार को बचाने का। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। There you go, guys. Make sure to subscribe to this gentleman. लकड़ी के घोड़े पर सवार क्वीन कंगना मैदान पर उतरी और उसने अपने फार्मर्स को गलियाना शुरू किया और उनको डिस्क्रेडिट करना शुरू कर दिया। कंगना लेकिन ये भूल गई थी कि ये मिडिल क्लास टीवी वाली ऑडियंस नहीं है जो मुंडी हिलाकर 9 बजे जो भी वो बोले वो मान ले। खासकर की ये वाला ट्वीट। Okay, that was the one that we just saw previously to this, but I hadn't sort of read that second piece. It says here, Pakistani journos have hijacked international PR for India in an embarrassing way. We need our own people to speak for us internationally. So I guess she's saying that, I don't know, is this like, in her mind, is this some sort of like conspiracy that's going on here? That maybe these farmers don't really have legitimate reasons to be there? I'm not really sure what she's saying here, but I know that at the end of the day that that this poor old woman got stuck in the middle of this. ने फार्मर्स के साथ प्रोटेस्ट करती हुई दादी का अपमान किया और कहा कि ये 100 रुपए में मिलती हैं ऐसी दादियां। 3 बड़ी गलतियां कर दी कंगना ने एक ही ट्वीट में।
पहला तो ये टाइम मैगजीन वाली शाहीन बाग वाली दादी नहीं थी, ये पंजाब के फार्मर्स को सपोर्ट करने वाली दादी So, wrong woman. कंगना को लगा कि भैया देखो सबका तो रेड कार्ड होगा, दादी का भी होगा। अब देखिए इस बात को मैं समझ Yeah. Okay, so this was maybe the comparison here. So she assumed that the woman on the right was the same woman as the woman on the left. But there you go. She was wrong. सकता हूं, देखिए कुछ लोग अपनी पर्सनल आदतों से मजबूर होते हैं, लेकिन तीसरी सबसे बड़ी गलती हुई कंगना से जब कंगना ने पंगा ले लिया किससे? पंजाबियों से। अरे भैया इस बार तो अर्नब दादा भी नहीं था। देखो भाई देखो, पंजाबियों से फालतू में पंगा नहीं लेते, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकता हूं, नहीं लेते। और खासकर कि तब तो बिल्कुल नहीं लेते हैं जब वो गुस्से में है, दिल्ली के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं। जवाबी कार्रवाई में दिलजीत दोसांझ जो कि फार्मर्स को पहले से ही सपोर्ट कर रहे थे, उन्होंने लिखा कि हमारी मां हमारी भगवान है, जो उनकी बेइज्जती करेगा ना वो हमारे लिए सेलिब्रिटी नहीं है। हमारी मां के सवाल का अब जवाब Oh wow, calling her out. It's like don't ignore my tweet. And someone like Diljit, I mean, he's got a platform, right? You're not going to be able to ignore a Diljit Dosanjh tweet, right? और वैसे आज के लिए यही काफी है। जब दोबारा खुराक चाहिए होगा तो बता देना, पंजाबी हमेशा तैयार रहते हैं। और साथ ही में जो वीडियो था वो पूरा एक्सपोज कर रहा था कि कंगना ने जो बोला था वो बिल्कुल झूठ था और एक प्रोपेगेंडा वो फैलाने की कोशिश कर रही थी, शाहीन बाग से लिंक करने की कोशिश कर रही थी फार्मर प्रोटेस्ट को। समझदार आदमी यहां चुप रहता या फिर That's right. Yeah. So I'm sure what she did is she said I got these things wrong and she apologized, right? I have a feeling she didn't do that. लेकिन कंगना को तो दोनों ही नहीं करना आता है, तो उसने वही किया जो उसको करना आता है। वो फूट पड़ी ऐसे ज्वालामुखी, बोली ओ करण जौहर के पालतू, जो दादी शाहीन बाग में अपनी सिटीजनशिप के लिए प्रोटेस्ट कर रही थी, वो बिल्किस बानो दादी फार्मर्स के एमएसपी So she's doubling down, I think. दिखी। महेंद्र कौर को तो मैं जानती तक नहीं, क्या ड्रामा चला के रखा है तुम लोगों ने। स्टॉप दिस राइट नाउ। पहली बात तो है कि कंगना दूसरों को बोल रही है क्या ड्रामा चला के रखा है। भाई इससे ज्यादा आयरनी क्या हो सकती है। अब देखिए बॉलीवुड का कोई स्टार होता ना, यहां चुप हो जाता। अरे कौन खाए गाली कंगना। It's Michael Scott from The Office, or maybe the actor from another movie. But anyways, I always love how he has these little clips as well too. That's quite funny. I always enjoy these little memes and scenes that he pops up. लेकिन दिलजीत जानता था कि कंगना बात घुमा रही है और माफी तो कभी नहीं मांगने वाली है। दिलजीत बोला Oh! जितने लोगों के साथ फिल्म किया है, क्या तू उन सब की। So you guys will maybe have to fill me in a little bit on who she was saying that Diljit was the pet of, because she was like, calling him out on that a little bit. So let me know, guys. पालतू है। फिर तो लिस्ट बहुत लंबी होगी। बॉलीवुड नहीं है, ये पंजाब वाले हैं, इनकी छाती में बहुत जोर है। झूठ बोलकर लोगों को भड़काना और इमोशंस के साथ तो खेलना वो आपसे अच्छा होता है। He didn't hold back anything. जो बात सब जानते थे, सब बात कर रहे थे जिसके बारे में, वो दोसांझ ने खुले में पूरे दुनिया के सामने रख दी। अब तक कंगना खोरियाई हुई बिल्ली बन गई थी, खंबा नोच रही थी, अपने लेवल पर तुरंत गिराई। बोली ओ चमचे चल, तू जिससे काम लेता है उनकी No way! हूं। Whose asses you lick daily? What? Sorry, I gotta step back there a couple of seconds, guys. She said, "You lackey, I beat the hell out of those whose asses you lick daily." Wow, that escalated quickly. चल, तू जिससे काम लेता है उनकी मैं रोज बजाती हूं। मैं कंगना रनावत हूं, तेरे जैसे चमची। Wow, not a footman such as you. सिर्फ और सिर्फ शाहीन बाग वाली प्रोटेस्टर पर कमेंट किया था, अगर कोई अलग साबित कर दो तो मैं। Which honestly should probably be a pretty easy thing to prove. Either this woman is the same woman as the other protest or she's not, right? It's that simple. And at the end of the day, she was wrong. माफी मांग लूं यार, एक झूठ को छुपाने के लिए, एक एजेंडा को छुपाने के लिए 100 और झूठ दागे जाओ। कंगना बार बार डिस्कशन को बॉलीवुड और शाहीन बाग के तरफ ले जा रही थी। वो फार्मर प्रोटेस्ट को शाहीन बाग से लिंक करने की बहुत डेस्परेट कोशिश कर रही थी। फार्मर प्रोटेस्ट के लिए कोई बात नहीं, क्योंकि शायद आईटी सेल ने उसको फार्मर प्रोटेस्ट के बारे में अच्छी तरीके से ट्रेनिंग नहीं दिया होगा। दिलजीत फिर उसने गोली दागी। आजा ऐसा काम मैं I have never licked the asses of I'm teasing. Okay, so what does he actually say?
तूने कितने Oh, no! काम लिए हैं? मैं बॉलीवुड में स्ट्रगल नहीं करता मैडम, बॉलीवुड वाले कहते हैं फिल्म कर Wow! मैं फिर कहता हूं ये बॉलीवुड नहीं पंजाब वाले हैं, 2 की 36 सुनाएंगे। दिलजीत के जवाब। All right, guys. So I knew that things got testy. I knew that this, he was saying this was kind of the Twitter showdown of the year. And I thought maybe there was a little bit of, hyperbole in that? Or maybe it was a little bit exaggerated. Clearly, that's not the case. There was definitely a war of words here. And I'm surprised with how extreme they went with these tweets. Because at least the sense I get from Diljit is he's a very respectful guy. He's sort of maybe does steer a little bit away from some of the controversy in his career. And clearly, he's coming out like a viper here. So he's not standing back on this one. कंगना अब दिल बहला रही थी, लेकिन एक बात और भी सामने आ रही थी अनफॉर्चुनेटली कि बॉलीवुड में आज तक किसी बड़े स्टार ने कंगना को ऐसे ब्रूटली एक्सपोज नहीं किया था। Brutally ये काम exposed. पंजाबी सुपरस्टार को करना पड़ा। देश की छोड़ो, बॉलीवुड खैर अपने आप को अपने तेजाब से ही नहीं बचा पाई, जबकि यह काम ज्यादा मुश्किल नहीं था। दिलजीत ने यह बात दिखा दी। अगर बॉलीवुड ने ही ठीक कर दिया होता तो आज दिलजीत को कंगना को रिस्पेक्ट नहीं सिखानी पड़ती। दिलजीत भी लगा रहा, बोला कि तमीज नहीं है तुझ में, किसी की मां बहन के बारे में कुछ भी कह देती है, खुद औरत होके दूसरी औरत को 100 रुपए वाली कहती है, हमारे पंजाब की मां हमारे लिए भगवान होती है। So it looks like maybe Diljit Dosanjh was perfectly positioned as both being Punjabi and a Bollywood star because he could speak out against this actress and set the story straight. And I'm glad that he did. ये तो तूने मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया, पंजाबी गूगल कर लेना। आई काट लिया सांप ने मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाला है। अरे करारा जवाब मिले। और दिलजीत वाज नॉट डन येट। फिर से दागा दिलजीत ने एक और ट्वीट, तुझे बिल्कुल भी अकल नहीं है, बॉलीवुड की धमकी किसी और को जाकर देना हम लोगों को ठिकाने लगाने वाली है। अरे तू पहले बॉलीवुड वालों को बोलती रहती होगी। यार इस टाइम तक कंगना को भी लगा कि यार पानी सर से ऊपर निकल रहा है। अभी तक तो बॉलीवुड वाले चुप हो जाते थे इतने ट्वीट्स के बाद, लेकिन ये तो चुप ही नहीं हो रहा है। इसीलिए एक और ट्वीट दागा ने। Wasn't gonna go away quietly into the night here. यार एक बात बताओ, Who's Karan Johar? I don't know. इसका करण जौहर वाला ऑब्सेशन कब खत्म होगा? हर ट्वीट में करण जौहर। पंजाबी समझ आती है मुझे, जिन्होंने दिल्ली में दंगे करवाए, खून की नदियां बहाई, उनको डिफेंड करते हुए तुझे शर्म नहीं आती? अरे तुझे क्या शर्म आएगी? करण जौहर कैसे काम देता है सबको पता है। So I guess is this the guy that Diljit's allegedly licking the asshole of for work or something? I'm just trying to piece this together, guys. अरे यार दिलजीत भी सोच रहा होगा, यार ये कितनी पागल औरत है यार, फार्मर छोड़ के पूरी दुनिया के बारे में बात करती है और करण जौहर को तो कभी नहीं छोड़ती है। लेकिन दिलजीत पाजी डिड नॉट गिव अप। बात कहां की हो रही है और तू किधर ले जा रही है? दिमाग ठीक है तेरा? बात को घुमा मत, सीधा जवाब दे। जो तूने हमारी मां के लिए 100 रुपए वाली दादी बोला है, सारी हीरोइन गिरी वही निकाल देगी। ये प्यार भरा कॉन्वर्सेशन यही खत्म नहीं होता है, काफी देर तक चलता है और चलता ही रहता है। कंगना टेररिज्म, पाकिस्तान, टुकड़े टुकड़े गैंग, एलियन, सब कुछ लाने की कोशिश करती है और दिलजीत उसे बार बार लाइन पर लाता है। कंगना कहती है मेरा या तुम्हारा सही होना जरूरी नहीं है। ओए इतना माना है कि चलो वो हो सकता है वो सही ना हो, देश का सही होना जरूरी है। तुम लोग फार्मर्स को भड़का रहे हो। Once again, this whole thing about misleading the farmers. If I was a farmer, I think I would be really offended by that. That you think sort of so low of me that I'm going to be sort of fooled by the government or fooled by the propaganda, that I don't know enough about farming in my own industry to know that that I'm being screwed over. So that's something I think as a farmer I'd be really upset about. And so it's interesting. She continues to just double down here. I can't wait to see how this ends. परेशान हूं मैं, आय हाय हाय कोई गलत कदम ना उठा ले। परेशान हूं मैं इन प्रोटेस्ट से, आए दिन इन राइट से, इन खून खराबे से, और तुम सब भागीदार हो इसमें। रिमेंबर दैट।
दिलजीत भी ना हार मानने वाला नहीं है। आदमी अब तक हार मान चुका होता, लेकिन भाई गोट है दिलजीत। दिलजीत अभी भी धोबी पछाड़ मारते हुए आर्ग्यूमेंट से ना ट्रेनिंग भी हमें दिलजीत से लेनी चाहिए। ये मां तुझे खून खराबे वाली लगती है, हर बात में खून खराबा चाहती है क्या तू? हाँ, ये बात बिल्कुल सही पूछी है। हाँ, एजेंडा क्या है भाई? ये मां हमारे लिए भगवान है। तुझे बोलने की तमीज नहीं सिखाई किसी ने, तुझे पंजाबी ही सिखाएगा कि कैसे अपने बड़ों से बात करते हैं। भाई फाइनली जब कंगना ने देखा यार ये तो मां से हटी नहीं। So let me guess, she finally apologized, right? I guess we'll find out. मैं इतनी सारी चीजें ले आई, तब उसने हार मानकर अपनी लकड़ी की घोड़ी पर बैठकर वो गई आईटी सेल। खबर तो यही आई है कि भैया आईटी सेल जाकर उसने बोला है मालविया भैया मुझे बचाओ। So is this someone that maybe she's worked with in Bollywood or something like this? Is she's kind of reaching out to some of her powerful friends to maybe get her out of this mess? खबर अब यह है कि आईटी सेल ने सारे अपने लीव्स कैंसिल कर दिए हैं। सारे योद्धाओं को, साइबर योद्धाओं को बुलाया गया है वापस ऑफिस। जंग का Oh, cyber warriors, I see. पंजाबी सुपरस्टार दिलजीत दोसांझ Oh, no. टारगेट नंबर 1 है आईटी सेल के। जल्द ही उन पर न्यूज, डिबेट और वीडियो एक्सपोजे आपको दिखने को मिलेंगे। दिलजीत तो ये सब झेल लेगा, वो तैयार है इस सब के लिए। लेकिन क्या अब बॉलीवुड अपने नींद से, अपने एरोगेंस से जगेगा? बात कंगना की नहीं है, दिलजीत भी कहता है कि ये बॉलीवुड नहीं है कि तुम भौंकती रहो और हम चुप बैठेंगे। बॉलीवुड में स्वरा, तापसी, ऋचा जैसे एक्टर्स और कुछ डायरेक्टर्स के सिवा हमें खामोशी ही मिली है और इस खामोशी का फायदा खूब So I guess Bollywood's been sort of kind of quiet, at least according to Akash Banerjee here. आया है कंगना ने, और इसीलिए दिलजीत ने हमारा दिल जीता है, क्योंकि जहर को दवा ही काटता है। Cure poison with medicine, cure fake facts with true facts, or falsehoods with truths. He's definitely doing the good work here, guys. दवा, और वो तेज दवा कड़वी ही होती है, लेकिन जरूरी होती है। जहर से मुंह फेर कर जहर चली नहीं जाती है। इस पब्लिक ह्यूमिलिएशन के बाद भी कंगना रुकेगी नहीं, इस पे किसी को डाउट नहीं है। उसका जहर मानने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उसका इमेज अब I want to hear what this guy says. He says, "You have immense respect for her. I even tweet in support of her office." Sorry, let me start that again. I used to have immense respect for @Kanganan team. I even tweeted in support when her office was demolished. I now think I was wrong. Kangana, being a woman, you should show the old lady some respect. If you have any etiquette, then apologize. Shame on you. Now, actually, that's a good point. So even if she does backtrack or she deleted her tweet, as I understand, has she actually apologized to this old woman to say sorry that I insinuated that you were an actress who was getting paid 100 rupees to protest? I'm curious if she actually apologized. चक गया है। आने वाले दिनों में कंगना को जरूर बोला जाएगा, बेटा सोच समझ के ट्वीट कर लो, नहीं तो दिलजीत आ जाएगा। लेकिन मोर इंपॉर्टेंटली एंड में अगर अभी भी आप इस डिस्क्रेडिटिंग गेम को नहीं समझे, सरकार के स्ट्रैटेजी को नहीं समझे, आप अभी भी सोचते हो कि फार्मर्स सही नहीं है, आप उनके बेसिक एमएसपी के मांग से सहमत नहीं है, तो आप एंटी नेशनली नहीं है। मुबारक हो, आप अंधे भी हैं। Wow. लेकिन अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरे ख्याल से आप अंधे तो नहीं हैं और आप में काफी हद तक आईक्यू और कॉमन सेंस तो है। Hey, IQ, common sense. I like this guy. इस गेम को एक्सपोज किया है दिलजीत ने, उनके एक प्यादे को बहुत अच्छी तरीके से एक्सपोज किया है दिलजीत ने। आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, नहीं भी लगा हो तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, जरूर बताइए आपको कैसा लगा। आप हमारी मुहिम के साथ जुड़ सकते हैं जिससे हम ऐसे और वीडियोस बना पाएं। Well, I sure hope you guys support him. I'd love to see more videos from this gentleman. /देशभक्त। अब हमारे पास एनुअल मेंबरशिप भी है जो आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको मिलता है डिस्कॉर्ड एक्सेस, जिसके आपको मिलता है it's got a Discord. एक्सक्लूसिव मेंबर्स ओनली। Very cool. जरूर ज्वाइन करिएगा मेंबरशिप, नीचे ज्वाइन बटन है, आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग, मोर एपिसोड्स कमिंग अप। Awesome. Well, I enjoyed that a whole lot. So, first, I guess I discovered Druv Rathi with your guys' help. I have now discovered this gentleman who I'm really enjoying his content as well too. So this would be of course, Akash
Banerjee, and maybe you guys have some other suggestions. I've recently discovered NDTV, which also has the English subtitle. So really anything that's going to help me get more of a sense of the situation that's in English, that's reputable, that isn't going to be just trying to mislead me. So maybe you guys can let me know what sort of sources I should be checking out in relation to the farmers' protest, or even just general news from India. I've been really enjoying sort of getting news stories with the English subtitles so that I can sort of dig into things on my own. So, thank you so much, guys. Keep those links coming. If you enjoyed today's video, then I'm going to ask you to click that subscribe button. Click the little bell icon. Choose all from the drop-down menu so you can get updated every time we upload a new video. Leave that thumbs up if you enjoyed, and we'll see you guys down there in the comments. So this is Internet Rabbit Hole Daily, IRH, signing off. Bye-bye, guys.